बाबरी मस्जिद जो हमेशा से विवादों में रही है, एक बार फिर से न्यूज में है। वो भी DY चंद्रचूड़ जो फॉर्मर CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनकी वजह से। DY चंद्रचूड़ ने न्यूज लॉन्ड्री के श्रीनिवासन जैन को एक इंटरव्यू दिया। उसमें वो कुछ ऐसा कह गए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। वो कंट्रोवर्सी क्या है वो हम जरूर जानेंगे, पर उसे जानने से पहले बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जान लेते हैं। बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, जो मुगल एम्परर बाबर के टाइम पे 1528 में बनाई गई थी। हिंदूज का बिलीव था कि ये राम जन्मभूमि पर बनी है, जहाँ पहले एक एंशिएंट टेम्पल हुआ करता था। ये डिस्प्यूट सेंचुरी से चला आ रहा था, लेकिन 1850 से वायलेंस शुरू हो गए और बात तब बिगड़ गई जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में राइट्स हुए और हजारों लोग मारे गए, जिसका जजमेंट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें 5 जजेस की बेंच बनाई गई। उन 5 जजेस में रंजन गोगोई, SS बोबड़े, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर थे। बाबरी मस्जिद का डिसीजन यूनानिमस दिया गया, मतलब 5 जजेस इस डिसीजन के लिए एग्री करते थे। कोर्ट ने बोला कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से प्रूव होता है कि मस्जिद के नीचे एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर था जो 12th सेंचुरी का हो सकता है। इसलिए हिंदूज को 2.77 एकड़ साइट राम मंदिर बनवाने के लिए दी गई और एक ट्रस्ट भी बनाया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। कोर्ट ने मस्जिद के डिमोलिशन को एग्रीजियस वायलेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ बोला, मतलब सबसे बड़ा इलीगल एक्ट, इसलिए मुस्लिम्स को 5 एकड़ लैंड दी गई। ये जजमेंट एविडेंस के बेसिस पे दिया गया था, ना कि फेथ के बेसिस पे। कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट हो गई। DY चंद्रचूड़ ने अपने रीसेंट इंटरव्यू, जिसका टाइटल था फेथ वर्सेस एविडेंस, में कहा द वेरी इरेक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद वॉज द फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन, मतलब बाबरी मस्जिद का बनना ही पहला डेसिक्रेशन था, क्योंकि ये सेक्रेट हिंदू साइट पे बना था। So that's an interesting point, because the argument there is that the idea that the inner courtyard was contested was a result of also the Hindus committing illegal acts like desecration and asserting their rights and creating disturbances. The fact that the Muslims didn't do that in the outer courtyard, they didn't contest it, then becomes almost a grounds to punish them. That the fact that you didn't put up a fuss, you didn't put up a fight, while the Hindus did, actually weighs against the Muslims, is one critical reading of the verdict. Now, when you said that, well, it was the Hindus who were desecrating the inner courtyard. What about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened. We forget that happened in history. Now, once you accept that that happened in history, and we had evidence in the form of archaeological evidence, how can you shut your eyes? So, you know, what is really being done by many of these commentators that you have referred to is that you have a selective view of history, ignore evidence of what happened beyond a certain period in history, and start looking at evidence which is of a more comparative But I thought nature. just a number of reasons. There was adequate evidence from the archaeological excavation. Now, what the evidentiary value of an archaeological excavation was a separate issue altogether. All that I want to say really is this: that if but on the point that you're saying that that there was a desecration earlier, right? But where was the evidence of that? There's evidence in the form of the archaeological report. No, but not the fact that the mosque was built by demolishing a structure. Simply that there was an underlying structure which could have collapsed for a number of reasons. Let's face it, that the judgment is based on faith and not on evidence is a criticism of people who, I dare say, have not read the judgment. Right. You may agree with the reasons of the judgment, or you may disagree. Well, that's for the citizens or whoever reads. उनका ये स्टेटमेंट 2019 के वर्डिक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। DY चंद्रचूड़ के अकॉर्डिंग मस्जिद का बनना ही गलत है। अब सवाल यह उठ रहा है कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट एविडेंस के बेसिस पे दिया गया था या फेथ के बेसिस पे। ऑपोजिशन लीडर्स भी अलग अलग तरीके के सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि कोई कह रहा है कि कम्युनल हार्मनी को खराब करेगा, और एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की डिमांड कर सकता है। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी कई बड़े सवाल उठाती है, जैसे कि जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है, फेथ और लॉ का बैलेंस कैसा है, और क्या पास्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। क्या ये टॉपिक आने वाले इलेक्शंस में यूज होगा। दोस्तों, राम मंदिर तो बन गया, लेकिन डिबेट अभी भी जारी है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइए।